So we have to find the student. All of you have found the angle that is doesn't show that the angle AOB is 1.70 radian, and this is correct to two decimal places. Okay, so AOB is the angle we have found, and now we have to find the parameter part B. They are saying to find part B, and part B is there. Find the parameter of the shaded shape. Okay, you have to work upon it. So first of all, what we are going to do, students, what we are going to do, we are going to find out the major arc length. Okay, to find the major arc length, we need angle of major angle. Okay, so radius you know, and angle you know, this 1.70, but we will not use 1.70. The reason is we will be using the angle, major angle of that. So the complete angle is 2 pi in, because 180 degree is equal to 1 pi and 2 pi is equal to 2 degrees. So I'm showing this work on your on my whiteboard. So I'm going to write the data over there in on my whiteboard. Okay, so just see, look at this. Okay, now I am here on my whiteboard. Now you please tell me one by one the data given. What is the radius? 10 centimeter. 10 centimeter. Very good. Okay, I'm just writing the diameter over here. What is the given angle in radian? Angle in radian. Please tell me the angle in radian. 1.7. Very good. 1.70. Angle in radian 1.70. Okay. Angle in radian 1.70 is it is the angle of minor arc. Okay. I'm writing in the bracket minor arc. So if I want to find out the angle in major arc, angle of major arc. So what? How can I do this? The complete angle is 2 pi minus 1.70. So complete angle is 2 pi. 1 pi is equal to 180 degree. So 2 pi is equal to 360 degree. So subtract this. Use your calculator. 2 pi minus 1.70. How much? 4.58. Okay, 4.58. This is in radian. Okay, okay, radian. Write down radians. Okay. Now I have to find the major arc, because major arc will be added to the other side. Okay, now apply this to find what is the arc length formula. S is equal to R multiplied by theta. Okay, what is radius? 10 multiplied by 10 multiplied by 4.58. Now, student, what is the arc length? 45.8. 45.8 centimeter. Okay, now if we come back to our shape which was given to us, I'm just coming back.
So to find the complete, I have found the major arc. Now what things are left? AB and BC. So in the given question, AB and BC are equal. It is written the length of AC and BC are equal. So how can I find the length of AC? Kindly input and participate in the class. Don't sit idle because this is class and you have to kindly make sure you should participate in class discussion. Don't think that whatever I will say it may be wrong. No, because we are here to learn something. Okay. So please now tell me, all students, how can I find AC? What is the approach? Sir, Pythagoras theorem. Okay, if I apply Pythagoras theorem, what will happen? Can I draw this triangle on my whiteboard? Okay. Now keep this diagram in your mind and I will just draw this triangle on my whiteboard. Okay. Okay, diagram is like this. Look at this. This one. This is right angle triangle given. So now student, over here it is A. And this is C. Okay. Now, how can I find, because I don't know this. Do you know, we know this one. This length we know very well. What is the length? This length. 15 divided by 2, it would be 7.5 centimeter. Okay. This length is 7.5 centimeter. Because this is the half of 15. Okay, what about this length? How can I find out this length? Because then I will be applying Pythagoras theorem. Do you know this? How can we find out? Kindly input. Share your thinking. सर वो लेना पता है 25 सेंटीमीटर. हाँ, पूरी लेंथ तो 25 सेंटीमीटर है, मगर 25 सेंटीमीटर में से वो जो राइट एंगल, वो जो सर्कल के अंदर ट्राइंगल में थी, वो उसको माइनस करना है. तो अगर हम उस ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दें और वो वाली लेंथ निकालनी पड़ जाए हमें, फर्ज करें इसको मैं m कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं m खुद से कह देता हूँ क्योंकि डायग्राम आपके पास मौजूद है. तो ये पूरी लेंथ 25 से जो ऊपर जा रही है, देखें यहाँ से ये ऊपर जा रहा था ना, देखें ये पूरा 25 है, ये लेंथ ऊपर जा रही है, लेकिन ये मुझे माइनस कर देना है. तो मैं क्या करूंगा, ये मुझे माइनस कर देना है, तो मैं क्या करूंगा. और मुझे ये भी मालूम है इसके ऊपर एक और ट्राइंगल भी बनी हुई है. तो अगर मैं यहाँ से एक ट्राइंगल ऐसे बना दूं तो रेडियस तो मुझे वैसे ही पता है कितना है, ये 7.5 है. ठीक है, और रेडियस तो मुझे वैसे ही पता है कितना है. कितना है बेटा, बताएं जरा रेडियस. 10. 10 यहाँ लगा दें, 10 सेंटीमीटर. अब ये 10 है और ये 7.5 है, तो आप ये लेंथ कैलकुलेट कर सकेंगे, ये वाली. अगर मैं इसको O से आ रही है ना ये लेंथ, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ. देखें ये O से आ रही है, ये O है. और अब आपका ये तो एंगल मिल गया. कितना मिला था ये 1.70 का हाफ क्या होता है, ये एंगल मिल गया था ना. यहाँ पे जो थीटा मिला था वो क्या था, 1.70 का हाफ बताएं.
0.85। 0.845 yes. हाँ, अब आपको एडजेसेंट निकालना है, एडजेसेंट। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कर दें तो tan लगा देंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दें तो cos लगा देंगे, कोई सा भी लगा लें। यहाँ पे हम कौन सा लगाएं, बताइए कौन सा यूज करें फिर। जी स्टूडेंट, ये लेंथ निकाल लें ताकि 25 में से माइनस कर दें, सही है? क्योंकि यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक ये 25 है, तो लगा दें। कौन सा लगाना है भाई, बताएं जरा जल्दी से। क्या लगा दूं? 10 लग सकते 10 लगा सकते हैं, ठीक है, 10 लगा देते हैं, चलिए। तो 10 कितना होगा? 1.70 का हाफ क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट 7.5 है, और एडजेसेंट जो है ना वो आप OM ले लें, OM ले लें, या कोई भी, इसको हम X कह देते हैं। चलो इसको हम यहाँ पर X लेफ्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं, X हमें नहीं मालूम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कॉमा लगा के मैं आगे जा रहा हूँ, आगे मैं जा रहा हूँ। X इज इक्वल टू क्या होगा? X इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 10, 0.85। पहले बेटा जल्दी से बताएं जरा मुझे, 7.05 डिवाइडेड बाय 10 करके बताएं जरा क्या आ रहा है। हैं 6.58 तो ये आ रहा है 6.588 आ रहा है, 58। चलें, ये x की वैल्यू आ गई 6.58। तो अब आप मुझे, सारे स्टूडेंट मुझे ये बता दें कि ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ताकि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे ये वाली AC की लेंथ मिल जाए। 25 में से क्या माइनस करूंगा मैं? 6.58 क्या आ रहा है? 25 में से माइनस करें जरा, 18.41। तो बेटा ये भी मुझे yes मिल sir. गई 18.41। अब आप AC निकालने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम में लगा के AC निकाल रहा हूँ, इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट ले ले, पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो मैंने डायरेक्टली रूट के अंदर इसको डाल दिया। किसको डाला? 7.5 का स्क्वायर, and then plus, I'm using plus because AC is hypotenuse. So what is that? 18.41, the square of this. Use your calculator and tell me answer, what is AC? What is AC? 19.87 19.87 centimeter. So student, you have arc length. In arc length we will add AC, and when AC is here, so similarly other side is also the same in your diagram BC. Kindly add them and then tell me what is the total parameter. Tell me the final answer of this. When AC is this, so BC is also same, because AC and BC are equal. 19.87 centimeter.
Now total parameter, students, total parameter, what we will add? In total parameter, what will we will add? Please, of shaded region, total parameter of shaded region. This is all shaded. So we can say total parameter of shaded region. And that is, बेटा बताएं कौन कौन सी चीजों को ऐड करेंगे, जल्दी बता दें. सर आर्क लेंथ और AC और BC. हाँ, आर्क लेंथ AC प्लस BC. तो मैंने ऐड कर दिया आर्क लेंथ, मेरे पास वो आया था. तो इसका फाइनल आंसर जरा बताएं क्या आ रहा है प्लस करने के बाद. 85.54. अच्छा, 85.54 आ रहा है. 5.5 कर देते हैं इसको, 4 आ रहा है तो ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है स्टूडेंट, टोटल पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, इसको नोट कर लें. हमजा जफर, आपने कर लिया साथ साथ, आपकी पार्टिसिपेशन, आपकी आवाज नहीं आई मुझे. Okay, this is your final answer. Should we move to the next part of this question? Yes, sir. All right. Jasra, is all easy? Yes, sir. Okay, now look at this. Find the parameter of shaded region 4 part. Let's check the answer. Anaya, please check the answer. What is the, okay, part A? Okay, that we have shown that angle is 1.70 here. In part B, you have to find the parameter. What is the final answer written over here? 85.6 or 85.5? What was our answer? 85.5. Okay, both answers are correct. Both answers are correct. Okay, now in 10C, question number, because this is question number 10. Now in 10C, what is written? Read this question for 5 marks. Be careful, 5 marks are given. Find the area of shaded shape. Yes, student, would you be able to do by yourself? Yes. Should I give you a few minutes? Hello. Will you try, Jasra? Yes, Anaya, will you try by yourself? Yes, sir. Okay, now start it, please. You have found values, just you have to use them.
to find area of major sector plus area of triangle inside the circle, then area of other triangle. So it is very easy. Look at this, the base of this triangle inside the circle 15, and height we have found. What height we have found of this triangle? We found x, x was the height of this, and that is 6.58. 6 half into base into height. So you will find the area of inside the triangle. Half r square theta, area of sector. And then you have found you subtracted the height of inside the triangle and find the remaining. This is the height and base is 15. For both triangles, the base is 15, but height is different. Okay? Values are given. It is very simple. Now you can do this. Values are already given to you, so I hope you can do this. Vasil, are you finding the answers correct? You are quiet in the class. Sir. Yes, Very sir. good. So for finding the area, please explain. For finding the area of sector, what will you do? Yes, Vasil. To find the area of major sector, what formula you are using?
Can you hear me, Vasil? Vasil, are you there? Jasra, Yes, sir. Which formula you are using for area of sector and which values you are inputting? Anaya, please explain in the class. Student participation is very much appreciated. Yes. Yes, sir. Yes, Anaya, please explain. सर सर हम एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे निकालेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमें पता है तो 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मेजर थीटा जो कि 4.58 था जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया था. चलो ठीक है, very good. Then okay, let me write the complete formula for this over here. I am going to write this formula. Okay, we will combine this formula, area of sector and area of small triangle, area of large triangle. We will write this, don't worry. Okay, for area of triangle, small triangle, or you are doing now, so I can wait it. सर एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल में हम 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट निकाल देंगे तो वो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6.58. हाँ, उसकी जो स्मॉल ट्राइंगल की जो हाइट आई थी वो कितनी आई थी? हाँ, जो हमने एक्स निकाला था, 6.58. हाँ वो 6.5 थी, सही। तो माशाल्लाह वो ये भी आ गया, चले ठीक है। तो अब और एक तो ये हुआ, अब दूसरी ट्राइंगल, इसकी भी बेस 15 ही है, आपको नजर आ रही है, इसकी भी बेस 15 है, लेकिन हाइट जो है ना वो 25 नहीं है, उसमें से इसकी हाइट माइनस कर देंगे हम। तो इसको करें कैलकुलेट जल्दी से।
Okay, now what is the final answer, Anaya? Sir, 416.4. Okay, let's check the answer. 417. All right, it is good. Very good, Anaya. Jasra, what is your answer? Same? Same answer, sir. Wow, great. So now for those students, I'm going to share my whiteboard. Fatima and Vasil. Okay. Have you find the area of two triangles? सर ट्राइंगल्स का निकाल दिया वो सब वो दूसरा ओके अब यहाँ पे हम देखें क्या कर रहे हैं कि एरिया को सबको जो है हम एक फार्मूला बना लेंगे अभी ठीक है एक फार्मूला बना लेते हैं सबसे पहले फार्मूला बनाते हैं इसका एरिया ऑफ सेक्टर का ठीक है इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है हमारे पास बस यही हम यूज कर लेंगे डायरेक्ट ओके टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू ठीक है अब एरिया ऑफ सेक्टर था प्लस एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ लार्ज ट्राइंगल इसको मैंने अपनी मर्जी से ये नाम दे दिए हैं तो अब मैं इसमें फार्मूला पुट कर रहा हूँ तो पहला फार्मूला जो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ वो है हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर ठीक है एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर आर कितना दिया हुआ था मुझे 10 एंड व्हाट इज थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा ऑफ लार्ज arc length you can see here major arc length 4.58 and then you will put the bracket over here complete bracket has come okay now plus okay now 1 upon 2 multiply by now area of small triangle what is the base of small triangle 15 and what is the height we have found x 6.58 then plus then bracket open and close again half multiply by what is the base of the this triangle is also same but the height is different what is the height height is subtracting from 25 you subtracted from 25 so what was the answer what is the height 18.41. okay yes 18.41 now the final answer is 416 square centimeter. Hope you understand this question. I think all of you have understood this question. Please note down in your copies and don't forget to write the year and question number. सर ईयर रिपीट कर दें ये जो ईयर है ये है ईयर 21 है और पेपर है 11
कोड लिखें, कोड भी लिखना है 4037। लिख लिया? ठीक है बेटा, ये स्टूडेंट हो गया। अब आपका एक सवाल क्लास वर्क का कर लेते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन। ठीक है, एक सवाल, कुछ सवाल तो मैंने दिए थे आपको होमवर्क के लिए। अब ये कुछ सवाल मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ। आप मेरी बुक खोलें जरा जल्दी से। सर्कुलर मेजर, ठीक है, सर्कुलर मेजर खोलें। चैप्टर 8 है जो हमारा सर्कुलर मेजर। और इसमें अगर आपने ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाएं जरा, और ये मैं बुक भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और ये भी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इसको लिख देता हूँ कि ये ईयर कौन सा है हमारा, ये कौन से ईयर का सवाल है, ज़रा ये देख लें। कोड है 4037, पेपर है मई जून का। ठीक है, ईयर है 2021, सही है। वेरिएंट है 11 और क्वेश्चन नंबर है 10। ये क्वेश्चन बेटा एड मैथ का हमने लिखा है, ये अपने पास नोट कर लें। अभी डॉक्यूमेंट में भी आ जाएगा और वीडियो में भी शेयर हो जाएगा। तो अब मैं आपको आपकी बुक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, आपकी बुक मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करूँगा। मैड मैथ की जो बुक है ना वो। आप जब तक निकाल लें अपना बुक का क्वेश्चन नंबर, ये मुझे भी दिखाइएगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 11, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 11 खोल लें जल्दी से। मिल गया क्वेश्चन? मिल गया सबको? यस सर। चलें, वेरी गुड। इसमें डायग्राम कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर, यहाँ पे ये इस सवाल के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। अभी टाइम लग रहा है ये सॉफ्ट कॉपी का, मैं जब तक यहाँ लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 8.3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है आपको। ठीक है, और पेज नंबर है 179। चले अब ये स्टार्ट करते हैं। जो मैंने डायग्राम ये वाली बनाई है, ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, ये वाली डायग्राम आप बना लें। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर ये मैंने बना दिया। ठीक है,
small major sector, small sector, O D A, and this is C and this is B. What is the shaded part? This is the shaded part. Okay, student. AOD sector, when you consider sector AOD, when you is a sector, so then radius is AOD means small. Its radius is 4 centimeter. Okay, when EOC sector, then radius means large sector. Okay, radius is 10 centimeter. Okay, parameter of shaded region. Parameter, remember I am repeating, parameter of shaded region is 18 centimeter. Now you have to find two things. Angle AOD in radian and B, area of the shaded region. I think this is very simple question for all of you, so you can do. And some student, I think they have done it. Angle, they have found the angle from the given condition. Okay, so hurry up, please. You have 5 minutes to do this question. Use your calculator and find the answer. जी आपने अनाया पहला सवाल तो कर लिया होगा, आसान है बहुत। जसरा आपने भी कर लिया पहला पार्ट। वासिल एंड फातिमा प्लीज अपडेट करें।
जी अनाया, कितने सवाल कर लिए आपने? कितने पार्ट्स हो गए इस सवाल के? सर पहले पर ही हूँ। मुश्किल लग रहा है? सर वो एंगल समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकालूं, क्योंकि 8 लेंथ भी नहीं दी हुई। पैरामीटर देखें, जो गिवन है ना कंडीशन, उसी कंडीशन को इस्तेमाल करें। गिवन कंडीशन देखें क्या है, इसी को आपने यूज करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपने यूज करना है, और रेडियस भी दिया हुआ है आपके पास, तो एंगल कैसे आएगा, यही तो सोचना है आपको। जी जसरा बताइए, शाबाश, ये चैलेंजिंग हो गया है, तो शाबाश बताइए कैसे आएगा ये आंसर। पैरामीटर को यूज करना है आपने, तो कैसे यूज करेंगे? समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा चले, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लास के अंदर। अब ये देखिए कि हम क्या करेंगे। हमें पैरामीटर दिया हुआ है ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन में क्या क्या है जरा आप बताइए मुझे। एक आर्क लेंथ नजर आ रही है आपको शेडेड रीजन में? शेडेड रीजन में आपको आर्क लेंथ नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, अब मैं यहीं से बता रहा हूँ, फौरन आपको आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं, ये कितना है रेडियस? 4 सेंटीमीटर। तो मुझे इतना बता दें कि ये लेंथ कितनी मिलेगी मुझे, जल्दी बताएं। 6। 6। और ये भी मुझे कितनी मिल जाएगी? 6। यस। ये भी 6। अब ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला, अब ये आर्क लेंथ इसको भी प्लस किया हुआ है। अब ये मुझे नहीं मालूम ये क्या है आर्क लेंथ, सॉरी, इसको ऐसे लिख देता हूँ, हमें एस नहीं मालूम, ठीक है, हमें एस नहीं मालूम। तो फॉर्मूला लगा दे जरा जल्दी से। एक आर्क लेंथ में +6 इज इक्वल टू 18। तो अब ये देखिए आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बताएं। एस इज इक्वल टू आर थीटा, यही होता है ना? ये तो बहुत आसान सवाल था, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब ये तो फार्मूला मैंने अलग कर दिया इसका फार्मूला। अब देखें, अब हमने क्या करना है, आर्क लेंथ में 6 + 6 करके इज इक्वल टू 18 लिखना है आपने। तो क्योंकि 18 दिया हुआ है आपको, तो मैंने लिखा आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, और थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है। आर मल्टीप्लाई बाय थीटा हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू प्लस, मल्टीप्लाई कराया इन, ये तो अलग से मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, ये अलग से मल्टीप्लाई हो गए, प्लस करना है 12, यानी कि 6 + 6 इज इक्वल टू 18। चले बेटा, इसमें आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब आपके पास आर्क लेंथ नहीं है, लेकिन ये प्लस है। अब आप इसको आगे यूज करें जल्दी से, और फिर मुझे बताएं कि क्या करना है।
यहाँ एक चीज और आपने नोट करनी है, एक चीज और नोट करनी है कि इस स्मॉल आर्क लेंथ को भी तो फाइंड करना है, क्योंकि इसका भी पैरामीटर शामिल होगा उसमें। तो s इज इक्वल टू आर थीटा प्लस 12, ये मैंने तो इस आर्क लेंथ को निकाला, ये आर्क लेंथ भी प्लस होगी इसके अंदर, तो ये स्मॉल वाली आर्क लेंथ हो जाएगी, तो इसको भी मैं प्लस करूंगा। तो इसको एक काम कर सकते हैं, इसमें जो मैं आर लगाऊंगा उसको मैं क्या यूज करूंगा, आर थीटा प्लस आर थीटा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, जब आप आर्क लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पर ये स्मॉल का है, इसको कैपिटल आर कर लें। इसको अगर मैं कैपिटल आर कर दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, मैं वो वाला थीटा, अच्छा थीटा तो सेम होगा, आपको पता है इन दोनों का एंगल तो सेम ही है ना, यहाँ रेडियस जो बना हुआ है एंगल वो सेम है, इसको मैं आर कर देता हूँ। अच्छा इसमें प्लस ये वाली भी आर्क लेंथ करनी है हमने, कौन सी, स्मॉल मल्टीप्लाई बाय थीटा, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने थीटा तो सेम है दोनों में, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है मगर सेक्टर बड़े हैं इनके, तो इसको मैंने आर थीटा कर दिया, इसको मैंने कैपिटल आर थीटा कर दिया। तो स्टूडेंट अब अगले पार्ट में आ जाइए, थीटा तो सबको मालूम है, ठीक है, और रेडियस भी हमें मालूम है, स्मॉल आर और कैपिटल आर तो सब मालूम है हमें। तो बताइए स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, 4 थीटा प्लस, बेटा बताइए कैपिटल आर कितना है, जल्दी, 4 थीटा प्लस 10 थीटा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 12 करें तो कितना होगा, 6। चलें बेटा जल्दी से कर लें, ये कितना हो जाएगा, 14 थीटा। चलें जल्दी से बेटा कैलकुलेट करें, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी कैलकुलेट कर लें। 3/7 3/7 क्योंकि थीटा आ गया तो बाकी सारे मसले आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है, तो स्टूडेंट आपके पास थीटा आ गया है। अब जब थीटा आ गया तो मुझे उम्मीद है कि बाकी सवाल आप खुद ही कर सकते हैं। 3/7, ठीक है, और ये आ गया रेडियन। अब जब ये आ गया आपके पास तो अब आप इसी को अप्लाई करके आप काम कर सकते हैं अपना। क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना कोई आसान काम नहीं है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। एरिया ऑफ शेडेड रीजन स्मॉल में से वो जो माइनस कर देंगे हम, स्मॉल एरिया में से स्मॉल सेक्टर में से बिग में से स्मॉल माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, तो स्टूडेंट जरा बताइए, हाफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, मैं कैपिटल का निकाल रहा हूं तो आप 10 का स्क्वायर पहले लगा देंगे, और थीटा तो आपके पास आ ही चुका है, थीटा कितना आया है, 3/7। तो बेटा ये तो मैंने कर दिया, किसका एरिया निकाला मैंने, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये एरिया किसका फाइंड किया है मैंने, लार्ज सेक्टर का माइनस स्मॉल सेक्टर हाफ मल्टीप्लाई बाय स्मॉल सेक्टर 4 स्क्वायर, radius of small sector is 4 multiply by, and theta is given to you 3/7, so 3/7. So student, just calculate and tell me the final answer, hurry up.
Sir, 18. 18, very good. So this is the correct answer, 18 square centimeter. So I hope you have enjoyed this session, you have learned. So inshallah, we will join you in the next class. So assignment is already given to you yesterday. So all of you have copied so that we can wind up the class now. Yes, sir. Yes, sir. All right, inshallah, we'll see you the next time. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.